सो আজি আমাৰ পাৰমুটেশন আৰু কম্বিনেশন চেপ্টাৰৰ সেকেন্ড পার্ট লাস্ট ক্লাসত আমাৰ পারমুটেশন শেষ হৈছিল আজি আমি কম্বিনেশন শেষ কৰিম মানে আজিৰ ক্লাসত কমপ্লিট চেপ্টাৰ শেষ আৰু সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য চেপ্টাৰ পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন ওকে সো কোশ্চেন কৰাৰ আগতে কম্বিনেশন মানে কি হয় বেসিক কথাখিনি বাৰু জবাব লাস্ট ক্লাসতে কোৱা হৈছিল বাৰু এবাৰ তথাপি চাই লও পৰ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन माने सिलेक्शन सिलेक्ट करा सिलेक्शन करा एटु बारो कॉम्बिनेशन अंडरत आहिबो जेनेके सपोज আমাক কোৱা হল যে सपोज देयर आर 10 एप्पल्स 10টা एप्पल আছে ইয়াৰ পৰা सपोज তাতে বেলেগ বেলেগ স্টিকাৰ লগোৱা আছে তাতে স্টিকাৰ লগোৱা আছে এ বি সি ডি এনেকে জে লৈকে স্টিকাৰ লগোৱা আছে আমাক এট এ টাইম তিনিটা এপল চুজ কৰিব দিছে ঠিক আছে আউট অফ 10 এপলস আমাক তিনিটাকে এপল সিলেক্ট কৰিব দিয়া হৈছে অ্যারেঞ্জ নহয় অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে পারমুটেশন লাস্ট ক্লাসত কৰা হৈছিল আজি কি হল যে টোটাল 10 এপলস 10টা এপল আছে यार মাজত তিনিটাকে আমাক सिलेक्ट কৰিব দিছে ठीक है सपोज ऐसे चीज को समझेंगे कि मान लेते आपको इधर बहुत सारा सेल्फ रखा हुआ है सेल्फ ठीक है इसमें बहुत सारा सेल्फ रखा हुआ है ये 10 एप्पल्स में से कोई भी 3 एप्पल लेके आपको इधर रखना है मान लेते ये वाला जगह पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं 3 कोई भी एप्पल लेंगे तो मान लीजिए इसमें स्टिकर लगा हुआ है ए से लेके जे तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 तो आप सपोज अपनी ए रखिले बी और सी नेक्स्ट देखो ए बी और डी नेक्स्ट देखो सपोज आई एच और के सो के तो নহব বাৰু आई एच और डी এনেকে বেলেগ বেলেগ ভাবে ইয়াতে সিলেকশন কৰি ইয়াতে ৰাখা হল কোশ্চেন হল যে 10টা এপলক আমি তিনিটাকে ইন হাউ মেনি ওয়েজ ক্যান উই মেক দা সিলেকশন আমি ইয়াতে 10টা এপলক তিনিটাকে কিমান কেটা গ্রুপ বনাব পাৰো ঠিক আছে গ্রুপিং কৰা সিলেকশন কৰা কামস আন্ডার দিস টপিক কম্বিনেশন ঠিক আছে সো 10টা এপলক তিনিটাকে যদি গ্রুপ বনোৱাৰ কথা থাকে আমি টোটাল কেইটা গ্রুপ বনাব পাৰিম आंसर হ'ব 10 C3 मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है 10 आपको हर एक ग्रुप में कितना एप्पल रखना है 3 तो 10 C3 कथा क्लियर अभी इसमें एक चीज गौर से देखिए इसमें तो टोटल वैल्यू रहेगा टोटल वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा उसमें से आप 3 करके लेंगे 4 करके लेंगे 5 करके लेंगे तो ये वैल्यू किसी भी हालत में इससे छोटा नहीं हो सकता मतलब मैं अगर आपको बोलूं NCR माने देयर आर टोटल n आइटम्स टोटल आइटम केटा আছে n ইয়াৰ পৰা আমি যে গ্রুপিং বনাম या যে গ্রুপ বনাম যে এই গ্রুপ কেটা এটা গ্রুপত কেটাকে থাকিব r কে থাকিব এটা মানে NCR ক্লিয়ার আর এটা ফর্মুলা হল ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই factorial r factorial n minus this is the formula अगर याद करेंगे आप लोग npr लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल इतना ही था बट ncr जहां पे आपका कॉम्बिनेशन का बात आएगा सिलेक्शन का बात आएगा उधर फॉर्मूला एक्स्ट्रा आप नीचे में एक फैक्टोरियल r आपको देना पड़ेगा क्लियर है बात इसका मतलब है टोटल जितना भी आइटम्स है ये टोटल नंबर ऑफ आइटम इसमें से मैं कुछ ग्रुपिंग बनाऊंगा कुछ एक नंबर ऑफ आइटम्स लेके बार-बार मैं सिलेक्शन करूंगा ग्रुप बनाऊंगा ये आपका हो गया NCR क्लियर ओके ठीक है तो फॉर्मूला भी हो गया ये भी हो गया इसमें और एक चीज बोलना था ओके आगे बढ़े ঠিক আছে এটা সৰু কথা আৰু ফার্স্ট অফ অল ইন NCR এই যে r আছে যে r n is always greater than equal to r बहुत सिंपल কথা n সদায় r ৰ से বেছি হ'ব বা সমান হ'ব পাৰে টোটাল 10টা এপল আছে 10 এপলস are there আৰু আমি এক গোটেই কেটা এপল 10 এপলস লৈ মই সিলেকশন কৰিলো
তো 10C 10 হব ক্লিয়াৰ বাট কেতিয়া এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে মোৰ হাতত অপচন আছে 10টা মই সাপোজ 10টা ক্ৰিকেট বল ললো আৰু মই গ্ৰুপিং बनाबो দিলে মই 12টা के बॉल केতিয়া সম্ভৱে নহয় सो ये आर कभी भी n से बड़ा हो ही नहीं सकता इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स छोटा लेकिन होगा ही हमेशा छोटा ही होता है ज्यादातर ठीक है ओके तो बार पिছত চাই আছো বাৰু এটা আমি কোশ্চেনত আহিম ডাইৰেক্ট ঠিক আছে এটা ডাইৰেক্ট কোশ্চেনত আহিম লাষ্ট ক্লাছত আপোনালোকে পাৰমিউটেশন পাৰ্ট 1 ত আপোনালোকে কোশ্চেন নম্বৰ 18 লৈকে কৰিছে যেহেতু এটাই চেপ্টাৰ আৰু এইকাৰণে কোশ্চেন নম্বৰ সিৰিয়ালি মেইনটেইন কৰা হৈছে আৰু আজি আমি কৰিম কোশ্চেন নম্বৰ 19 কি দিয়া হৈছে NC8 equal to NC2 আমাক n और वैल्यू उलाबो दिस আমাক n और वैल्यू उलाबो दिस एक चीज पहले थोड़ा देख लीजिए NCA NCB যদি আপোনাক এই সিচুয়েশন দিয়া থাকে এটো মানে কি টোটাল নাম্বার অফ আইটেমস n টোটাল নাম্বার অফ আইটেমস n ইয়াতে যে মই গ্ৰুপ কেটা বনাম এটা গ্ৰুপত a नंबर ऑफ आइटम्स केटा থাকিব a आइटम्स माने सपोज फिर से ये वाला मान लेते हैं टोटल 10 एप्पल्स है उसमें से ये ग्रुप बनेगा 3 एप्पल का ये ग्रुप बनेगा कुछ अलग a और b आपका इतना आइटम का ग्रुप बनेगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइटम दोनों में देखिए सेम है n है जब आपको ये कंडीशन देखेगा इसमें से दो चीज हो सकता है এই পার্টিকুলার কন্ডিশন যদি দিয়া থাকে ইয়ার পর আপনি দুটা কনক্লুশন ড্র কৰিব পাৰে ফার্স্ট কনক্লুশন হল a must be equal to b ইয়াতে এনেকে বস্তু দিয়া থাকিলে লগে লগে আপোনালোকে দুটা বস্তু ক'ব পাৰে either a equal to b or a plus b equal to n কোৰ পৰা বস্তুখিনি আহিছে এটো জানাৰ প্ৰয়োজন নাই এটো আপোনাৰ সিলেবাসও নাই বাৰু এই পার্টিকুলার টাইপ অফ কোশ্চেন আপনার গুৱাহাটী হাই কোর্ট JAA 2021 ত দিয়া হৈছিল 2021 গুৱাহাটী হাই কোর্ট JAA কোশ্চেন পেপার চাব পাৰে আপোনালোকে এই পার্টিকুলার কনসেপ্ট দিয়া হৈছিল NCA equal to NCB মানে either A equal to B होबो either A equal to B or A plus B equal to N सेम सिचुएशन যদি আমি ইয়াতে লগাই দিও চাবো ইয়াতে আপনাক দিয়া হৈছে NC8 equal to NC2 NC8 equal to NC2 अगर either this equal to this कभी भी 8 equal to 2 हो सकता है क्या संभव ही नहीं है either A equal to B तलो दुटा नंबर इक्वल माने 8 equal to 2 ये संभव है पॉसिबल नहीं इसको तो हटाइए तो आपको ये वाला चीज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया ये वाला चीज आपका रह जाएगा तो आपका n equal to क्या होगा n equal to A plus B माने 8 plus 2 आंसर 10 is the answer अपना n और 10 is the answer কি ওলাব দিছে NC2 আপনা ওলাব দিছে NC2 n অর ঠাইত বহাম 10 মানে ওলাব দিছে 10C2 আপনা NC2 ওলাব দিছে মানে 10C2 ফর্মুলা কি আছিল আমার NCR ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল n ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r এটো আছিল ফর্মুলা অলপ আগতে পালো सेम फॉर्मूला যদি ইয়াতে ইউজ করা হয় ফ্যাক্টোরিয়াল 10 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 আৰু ফ্যাক্টোরিয়াল 10 - 2 হয়নে নাই এতিয়া চাবো ফ্যাক্টোরিয়াল 10 মানে কি 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 গোটে কেটা মাল্টিপ্লাই নকৰো আমি কি কৰিম 10 9 ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল 8 আৰু কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কি কাৰণ ইয়াতে ফ্যাক্টোরিয়াল 2 দিয়া আছে ফ্যাক্টোরিয়াল 2 মানে 2 মানে 2 into 1 আৰু ইয়াতে 10 - 2 মানে কি 8 ফ্যাক্টোরিয়াল বেছি আৰু কৰা কি ইয়াতে কাটা কাটি যাবই আৰু হয়নে নাই সো ইয়াতে কাটা হল 5 9 5 যা 45 এই NC2 ৰ आंसर কিমান ওলাইছে আমাৰ 45 is the answer 45 is the answer clear 45 is the answer क्लियर है आगे बढ़े देखिए हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल
কোশ্চেনের মানে কি, একটা সার্কেল আছে, সাপোজ দিস ইজ আ সার্কেল, দিস ইজ আ সার্কেল, ক্লিয়াৰ। এতিয়া চাব কি কোৱা হৈছে, টোটাল 21টা পইণ্ট আছে ইয়াত, 21টা পইণ্ট লোৱা হৈছে, এনেকে 21টা পইণ্ট লোৱা হৈছে। সাপোজ ইয়াতে 21টা পইণ্ট লোৱা হ'ল, ঠিক আছে, 21টা পইণ্ট লোৱা হৈছে, ক্লিয়াৰ। কোৱা হৈছে আমাৰ আমি 21টা পইণ্টে দি টোটাল কেইটা কৰ্ড বনাব পাৰো। কৰ্ড, কৰ্ডৰ ডেফিনেশ্যন কি, হোৱাট ইজ কৰ্ড? জে, অসমীয়াত যিটো জে বুলি কোৱা হয় কৰ্ড মানে सर्कल का सर्कमफेरेंस माने परिसीमा, सर्कल का जो बाउंड्री उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस माने परिसीमा। एक बाउंड्री सर्कमफेरेंस का कोई भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको एक कॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सर्कल और सर्कमफेरेंस जी को दुटा पॉइंट जो আমি জয়েন করো আমি একটা কর্ড পাম। तो एक चीज बोलिए, एक कॉर्ड मिलने के लिए, एक कॉर्ड जनरेट करने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट आपको एक कॉर्ड देगा, 2 पॉइंट आपको एक कॉर्ड देगा। सवाल है 21 पॉइंट है, आपको कितना कॉर्ड मिलेगा? तो टोटल आपके पास कितना ऑप्शन है, पॉइंट कितना है आपके पास? टोटल 21, टोटल है पॉइंट 21। और एक कॉर्ड के लिए आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कॉर्ड मिल जाएगा। आप कोई ये लेगा तो कोई वो लेगा, कोई तो क्या लेगा, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट लेगा तो कॉर्ड मिलेगा। ऑप्शन टोटल कितना है? 21 चाहिए आपको कॉर्ड, उसके लिए चाहिए आपको 2 पॉइंट, माने 21 में से आपको हर एक बार 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, हर एक बार 2-2 पॉइंट का ग्रुप बनाना है। तो 21 C2 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 21 केटाके सिलेक्ट करें दुटाके 21 C2 क्लियर। फैक्टोरियल 21 हाँ हाँ फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 21 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 -2। So factorial 21 माने 21 into 20 into 19 আমি 19 লৈকে কৰিলে হ'ব বাৰু, বিকজ আৰু প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে 19 কটাকটি যাবই আৰু ফ্যাক্টৰিয়েল 2 মানে 2 into 1 আৰু ইয়াতে থাকিল 19 ফ্যাক্টৰিয়েল। সো 19 ফ্যাক্টৰিয়েল 19 মানে গ'ল, ইয়াতে 2 দি যদি কাটা ইয়াতে পাম 10। সো 21 into 10 आंसर 210 इज द आंसर, 210 इज द आंसर, ठीक। Okay, moving to next question. Okay. How many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? আমার একটা টিম বনাব লাগে, টিমত আপোনাৰ বয় আৰু গার্লস লৰা ছোৱালী দুজনক দি টিম এটা বনাব লাগে। আমার তাতে টোটাল নাম্বার অফ বয়েজ কেটা আছে? টোটাল নাম্বার অফ বয়েজৰ অপশন আছে 5টা বয় আছে আৰু গার্ল আছে 4 জন। সো টোটাল নাম্বার অফ বয়েজ 5, টোটাল নাম্বার অফ গার্লস 4, টোটাল 5 জন লৰা আছে আৰু 4 জন আমাৰ ছোৱালী আছে। এতিয়া যেটো টিম বনোৱা হবে, টিমত নাম্বার অফ বয়েজ কেটা হ'ব? নাম্বার অফ বয়েজ উইল বি 3, नंबर ऑफ गर्ल्स विल ऑल्सो बी 3, ठीक है। आपके पास टोटल 5 बॉयज है, 5 लड़के हैं, उसमें से 3 लड़का को लेके आपको जो टीम बनेगा, टीम में आपको 5 में से 3 लड़का लेना है और ये 4 लड़की में से आपको 3 लड़की लेना है, ठीक है। टोटल आपका 5 लड़के में से 3 लड़का लेना है टीम में, 4 लड़की में से 3 लड़की लेना है। आप मुझे बताइए 5 लड़का में से 3 लड़की, सॉरी 5 लड़का में से 3 लड़का आप कैसे लेंगे? ऑप्शन है 5, आपको लेना है 3, तो 5C3 क्लियर। अभी 4 लड़की में से 3 लड़की लेना है, टोटल ऑप्शन 4 जन लोब लगे 3 जन 4C3 क्लियर। किंतु ইয়াতে এটা কথা আছে, এই মাজত কি আহিব, ইনটু না প্লাস? वेरी गुड, इसलिए हम लोग आगे आएंगे। देखिए जहां पे आपको एंड का, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ार पिছত যদি আপনার ইয়াতে ফিল হয়, ইয়াতে এন্ড, এন্ড মানে দুটা কন্ডিশন কম্পালসরি, এন্ড মানে ইনটু, एंड माने इनटू, और माने प्लस, एंड माने इनटू, और माने प्लस। इसको थोड़ा समझिए, मैं बोल रहा हूं आप लोग को, एक ग्रुप में
मुझे 3 लड़का भी चाहिए एंड 3 लड़की भी चाहिए एंड ये भी चाहिए ये भी चाहिए इनटू एक ग्रुप मुझे बनाना है, या तो 3 बॉयज चाहिए, आइदर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, या तो 3 लड़का नहीं तो 3 लड़की, दोनों में से कोई भी ऑप्शन से काम चल जाएगा, और माने प्लस, ठीक है, एंड इनटू और प्लस। अभी आइए क्वेश्चन पे। अभी देखिए এই গ্রুপত আমার টোটাল 5 জন লৰাৰ পৰা 3 জন লৰাক লোৱাটো কম্পালসৰি, 4 জন ছোৱালীৰ পৰা 3 জনক লোৱাটো কম্পালসৰি, আৰু এই যে 3 আৰু 3 6 জন ইয়াৰ পৰা 3 জন বয়েজ 3 জন गर्ल्स লোৱা হ'ল, আৰু এইটো লোৱাটো কম্পালসৰি, এনেকে নহয় कि ये लेने से भी होगा या ये लेने से भी होगा, नहीं, आपको दोनों लेना है, माने एंड, तो ये आपका बीच में होगा। क्लियर, समझे? अभी से कैलकुलेशन कर देंगे। 5c3 माने फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। क्लियर? सो फैक्टोरियल 5 माने 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, याते फैक्टोरियल 3 आसे 5 माइनस 3 माने 2 माने 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, याते फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 माने 1, सो फैक्टोरियल 3 गोल फैक्टोरियल 3 गोल फैक्टोरियल 3 गोल फैक्टोरियल 3 गोल, ए 4 ऑफ 2 दी काटा होल याते 2, सो 5 2 जा 10 10 और याते থাকিল 4 10 into 4, आंसर विल बी 40, आंसर विल बी 40। টোটাল আমি কেইটা টিম বনাব পাৰো, 3 জন ছোৱালী আৰু 3 জন লৰাক লৈ পিনে টোটাল কেইটা টিম হ'ব, 40টা টিম হ'ব, 40 টিমস। क्लियर है? 40 टीम्स, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls and 6 red balls, सॉरी 9 balls है, ओके सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls, टोटल 9টা बॉल सिलेक्ट কৰিব লাগে, टोटल नंबर ऑफ balls सिलेक्शन যেটো কৰিব লাগে এটো 9। অপশন কি দিয়া আছে? অপশন দিয়া আছে 6 রেড বলস, 6টা রেড বল আছে, রঙা কালারের বল আছে 6টা, 5 হোয়াইট বলস, 5টা হোয়াইট বল আছে और 5 ब्लू बॉल्स। एक काम करते हैं इसको 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, 6টা রেড বল আছে, 5টা হোয়াইট বল আছে, 5টা ব্লু বল আছে, আৰু আমাৰ টোটাল সিলেক্ট কৰিব লাগে 9টা বল। ক্লিয়ার? ইফ ইচ सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, आपको हर एक सिलेक्शन में 3 बॉल ईच कलर का चाहिए, ठीक है, मतलब क्या है, देखिए चीज का टोटल 9 बॉल्स आपको सिलेक्ट करना है। अभी टोटल 3 कलर है आपके पास, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, तो रेड आपको 3 बॉल लेना है, ब्लू आपको 3 बॉल लेना है, व्हाइट भी आपको 3 बॉल लेना है, 3 3 3 हो गया 9 बॉल। तो आपका टोटल रेड बॉल है कितना? रेड बॉल अपना केटा আছে 6টা, केटा लोगो लगे 3টা, केनेके लोगो 6c3। क्लियर? 5টা व्हाइट बॉल আছে, केटा लोगो लगे 3টা, 5c3। 5টা ব্লু কালারের বল আছে, কেটা লোগো লাগে 3টা, 5c3। क्लियर? अभी देखिए टोटल कितना बॉल आपको करना है, 9 बॉल। तो क्या इसमें और है कि एंड है? ये सब लेना है तब ना जाके 9 बॉल होगा, एंड होने से क्या होता है, इनटू की प्लस इनटू। कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो 6c3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल 6 माइनस 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे आरो फैक्टोरियल 3, तो ये लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 माने 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 माने 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 माने 2 इंटू 1। क्लियर? सो फैक्टोरियल 3 गोल, 3 2 जा 6 गोल, फैक्टोरियल 3 2, फैक्टोरियल 3 2, याते की থাকিল আমার 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 इंटू 2 10, और याते 5 इंटू 2 10, तो फाइनल आंसर 2000। क्लियर ना? জন নাকি সব ঘরে ঘরে একই অবস্থা, সবার একই হলে আবার মোটামুটি ম্যারাথন डजन नीचे कमे ही ना, 12 दिन मिनिमम। ठीक है, आंसर आपका होगा 2000 इज द आंसर। क्लियर? समझे? हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये जरूर देखना है क्या इसमें एंड और आपको वर्ड नहीं मिलेगा। কোনো কোশ্চেনত আপুনি এন্ড বা অর বলি এনেকে ওয়ার্ড ডাইরেক্টলি নাপায়। আপুনি কোশ্চেনটো পঢ়াৰ পিছত এইটো নিজে বুঝাটো প্ৰয়োজন, এটা এন্ড হ'ব না অর হ'ব। এন্ড মানে গোটেইকেইটা কম্বিনেशन কম্পালসरी, এটোও লাগে এটোও লাগে এটোও লাগে, एंड माने इनटू, ये होने से भी होगा वो होने से भी होगा, और माने प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड। আপনার এটা আমি যে কার্ডস খেলো আৰু টোটাল 52 কার্ড থাকে, নিশ্চয়কৈ গম পায় টোটাল কার্ড। बिकॉज ये तो मैं আৰু এবাৰ লিখি দিও, बिकॉज ये अपना আগত গৈ পিনে লাগিব, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को किसी किसी को खेलना आता होगा तो बहुत बढ़िया, खेलना नहीं भी आता है तो कम से कम जान के रखिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। जो कार्ड्स होता है, जो ताश खेला जाता है, टोटल 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स में आपका वैरायटी कितना होता है? वैरायटी 4 वैरायटी होता है। हीरो को पता है तो इसका मतलब और एक कुछ ऐसा एक रहता है। ठीक है, एक तो आपका होता है डायमंड, एक आपका होता है डायमंड, ठीक है, एक आपका होता है हार्ट, ठीक है, एक इसको बोलते हैं पान, स्पेड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, इसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, क्लब। ठीक है, ओके। अभी ये 4 वैरायटी मिलेगा, जोकर वोकर वो सब आप छोड़िए, वो सब फालतू गेम है। इसमें आपका 13टा हर एक का आपको 13 कार्ड मिलेगा। 13 इंटू 4 आपका हो गया 52। क्लियर? ओके। अभी कार्ड का में क्या क्या होता है, हर एक में कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जे क्यू के ए, हर एक कार्ड के कॉम्बिनेशन में आपको ये 13 कार्ड दिखेगा। हार्ट बोलिए, स्पेड बोलिए, जो भी बोलिए, आपको ये 13 चीज आपको दिखेगा। 2 से शुरू होगा, 10 तक खत्म होगा, जे क्यू के, इसको हम लोग मंत्री, रानी, रोजा, इक्का। ठीक है, हो गया। अभी देखेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले और एक चीज थोड़ा बता दीजिए। যদি আপনার যদি এই কোশ্চেন দিয়া থাকে নরমাল ভাইবা টাইপের কোশ্চেন, আর
যে এটা ডেক, এটো ডেক বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এটা ডেকত ৰজা কেইটা আছে? ৰজা 4 किंग, हर एक का एक एक राजा, रानी 4, मंत्री 4, ए 4, माने मंत्री माने जे आपका 4, सब 4-4 हो गए, हर एक कार्ड 4-4 आएगा। ओके, मैं अगर आपको बोलूं कि पूरा डेक में लाल राजा कितना है, राजा को मार के लाल किया गया है पूरा, टोटल नंबर ऑफ राजा, हरे कृष्ण, लाल राजा 16 था, 8, डायमंड और हार्ट ये दोनों ही लाल है, ये दोनों काला है, तो लाल राजा, रेड किंग आपका 8 होगा, ब्लैक किंग 8 होगा, रेड क्वीन 8, ब्लैक क्वीन 8। ये बोल रहा हूं बिकॉज इससे क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर आप एक प्रोबेबिलिटी जब करेंगे, प्रोबेबिलिटीज आफ्टर ऑल अपना कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज है, प्रोबेबिलिटीत बेलेग কোনো বস্তুৱে নাই, অলপ চলপ কিবা বেসিক বস্তু আছে, ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি কম্বিনেশন, আজি যিমানখিনি বস্তু আমি শিকিম তো প্रोबेबिलिटी চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে মোটামুটি বহুতখিনি কাম হ'ব। আৰু তাতে এনেকে কোশ্চেন আহিব যে এটা ডেক, এটা 52 কাৰ্ডৰ এটা ডেকৰ পৰা যদি আমি কাৰ্ড উলাও, এটো ৰেড কালাৰৰ ৰজা হোৱাৰ প্रोबेबिलिटी কিমান। সো তাতে টোটাল নাম্বার অফ কার্ড কেইটা? 52, তারপর রেড রজা কেইটা আছে? 8টা, উপরত থাকিব 8, তলত থাকিব 52, आंसर जी होबो। क्लियर? तो आपको ये थोड़ा जानना जरूरी है। अभी आइए क्वेश्चन पे, टोटल आपको बोला गया है 5, टोटल 5টা কার্ডৰ কম্বিনেশন বনাব লাগে, 5টা কার্ডৰ কম্বিনেশন বনাব লাগে ফ্রম, এটো আউট হ'ব লাগিছে, আউট অফ ডেক অফ 52 কার্ড, 52 কার্ডৰ পৰা 5টা কার্ড সিলেক্ট কৰিব লাগে। টোটাল 52টা কার্ড আছে, ইয়াৰ পৰা 5টা কার্ড আমাক সিলেক্ট কৰিব দিছে। ইফ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, लेकिन 5 में से एक आपका इक्का होना जरूरी है, एक आपका इक्का होना ही पड़ेगा, बाकी 4 कुछ भी हो, कोई ये नहीं। तो आप मुझे बताइए टोटल आपको कितना कार्ड सिलेक्ट करना है? 5 कार्ड, उसमें से एक इक्का कंपलसरी है। इक्का आपके पास कितना है टोटल? एक এটা আছে, 4টা আছে, তো এই 4টা এর পরা এটা এ হওয়াটো কম্পালসরি। তো 4টা এর পরা এটা এ আমি কিমান ভাবে সিলেক্ট কৰিব পাৰো? 4C1, টোটাল অপশন কেটা? এ আছে কেটা? 4টা, ইয়াৰ পৰা আমাক এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে, 4C1। এতিয়া টোটাল আমাৰ যেটো কম্বিনেশন, কেটা কাৰ্ডৰ কম্বিনেশন? 5টা কাৰ্ডৰ কম্বিনেশন, এটা কাৰ্ডৰ হিসাব অলৰেডি হৈ গল, বাকি থাকিল কেটা কাৰ্ড? 4টা কার্ড থাকিল। এই 4টা কার্ড যে আমি সিলেক্ট কৰিম, আমার হাতত বাকি আৰু কেটা কার্ড আছে? टोटल आपके डेक में 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड में से एक कार्ड लिए, 4 कार्ड का हिसाब हुआ, बाकी और कितना कार्ड है? भगवान, 52 माइनस 4 48, 52 কার্ড আছিল টোটাল। ইয়াৰ পৰা 4টাহে অকল ইক্কা, এই 4টা ইক্কা হিসাব বেলেগকে কৰা হ'ল, 4টা ইক্কাৰ পৰা এটা ইক্কা লোৱা হ'ব, 4C1। তো 4টা ইক্কা হিসাব হৈ গল, বাকি থাকিল কেটা কার্ড? 52 মাইনাস 4 48 কার্ড, 48 কার্ড। এই 48 কার্ডৰ পৰা কেটা কার্ড লোৱা এতিয়া বাকি আছে আমাৰ? 4টা, বিকজ টোটাল বনাব লাগে 5টা কার্ড, অলরেডি এটা কার্ড আমি লৈছো আৰু 4টা কার্ড লোৱা বাকি আছে, 48C4। এতিয়া টোটাল আমাৰ যেটো ই বনাম আৰু গ্रुप যেটো বনাম, 5টা কার্ড লাগে, ইয়াতে এটা কার্ড, ইয়াতে 4টা কার্ড, एंड ना और एंड, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, तब ना जाके 5 कार्ड होगा। एंड माने इनटू। क्लियर? बुझता है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए टोटल है না, ওটা না হলেও হবে, ভুলে যাও, তাহলে ফালতু কথা। মই কৈ আছিলো যে ইয়াতে আমাৰ কালাৰ কি আছে? ৰেড কালাৰৰ দুটা কাৰ্ড ৰেড কালাৰৰ হয়, 13টা 26টা, আৰু এই দুটা কাৰ্ড হয় ব্ল্যাক কালাৰৰ, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমাৰ ইয়াতে এই যে ডায়মণ্ডৰ আমি এটা কিং কুইন জে আৰু এ, এটা ডায়মণ্ডৰ হ'ব, নিশ্চয়কৈ হাৰ্টৰ আকৌ কি জে কিউ কে এ, হাৰ্টৰ কাৰণে পাম। এতিয়া কোশ্চেন হ'ল যদি আমাক এনেকে ওলাব দিয়ে বা এনেকে জাস্ট ভাইবা আৰু যে আমাৰ টোটাল কিং, ৰেড কালাৰৰ কিং কেইটা আছে? আমাৰ রেড কালারের কিং কেটা আছে? ইয়াতে এটা দুটা,
ইয়াতে অ্যাটাকিং দুটা রেড কিং হৈ গল টোটাল কার্ড কেটা 52 সো 52 ভিতৰত দুটা ৰেড 2/52 মানে প্ৰবাবিলিটি আমি এনেকে ওলাম আৰু যে এনেকে হ'ব পাৰে যে কিং অফ 5 এনেকে দিলে কুইন কেটা আছে ৰেড কুইন কেটা দুটা जे केटा दुटा यदि कलर यदि আমাক दी दिए यारो क्लियर अभी इसमें क्या मैं बोल रहा हूं टोटल 5 कार्ड আমার টোটাল যেটো গ্রুপ বনামি গ্রুপত টোটাল লাগে 5টা কার্ড লাগে কিন্তু কন্ডিশন দিছে যে 5টা কার্ডৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কার্ড এস হওয়াটো কম্পালসরি এস মানে এ হওয়াটো কম্পালসরি এতে এ যে আছে এ যাকে আমি এস বুলি কো এস इक्का ये हर एक में आपको एक एक एस मिलेगा डायमंड का एक एस है हार्ट का एक एस है पान स्पेड का एक एस है क्लब का एक एस है सबका एक एक ए आपको मिलेगा तो टोटल आपके पास कितना ए है ऑप्शन कितना है 4 उसमें से आपको तो सिर्फ एक लेना है एग्जैक्टली वन ही लेना है तो 4 में से एक लेना है 41 हो गया इंटू प्लस पहले मत दीजिए 41 देकर रख दीजिए उसके बाद টোটাল আপনার কেটা কার্ড লাগে 5টা কার্ড লাগে এটা কার্ডৰ হিসাব অলরেডি হৈ গল বাকি থাকিল কেটা কার্ড 4টা কার্ড এটা 4টা কার্ড যে মই লম মোৰ হাতত অপশন আছে কেটা 52 ৰ পৰা এই 4টা এ বাদ দিলো বিকজ এ তো অলরেডি হিসাব হৈ গল এ আৰু নলও আৰু এটা বাকি এ বাদে বাকি জি কেটা কার্ড আছে কেটা 48 ৰ পৰা 4টা লব পাৰো 48 c4 এতিয়া আমি 1 মানে ইয়াৰ পৰা এটা কার্ড ইয়াৰ পৰা 4টা কার্ড এই দুটাই আমি লম বিকজ এই দুটা মিলি আমাৰ 5টা কার্ডে দিব মানে দুটা এন্ড একাউন্ট ইনটু ক্লিয়ার इसे कैलकुलेशन कर लेंगे कर लिए कैंसियर ऐसा कितना आ रहा है वाह फैक्टोरियल 4c1 माने फैक्टोरियल 1 4 - 1 माने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44 क्लियर 4 फैक्टोरियल 3 यार पर फैक्टोरियल 3 48 47 46 45 44 4 3 2 1 44 फैक्टोरियल ए 44 गोल A3 गोल कैलकुलेशन अपन लोगे करिबो कैलकुलेशन अपने आंसर पाबो 778320 77832 इज द आंसर दिस इज द आंसर ठीक है कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा आराम से बिकॉज ये कैलकुलेट बहुत टाइम लगेगा 48 47 46 45 बहुत टाइम लगेगा ठीक कर लीजिएगा आराम से क्लियर है क्लियर होल आइए नेक्स्ट देखिए बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार देखिए अभी थोड़ा समझने में थोड़ा गौर रखिएगा क्वेश्चन की दिया इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम এটা ক্রিকেট টিম বনাবো লাগে ক্রিকেট টিমৰ কেটা প্লেয়ার থাকে 11টা প্লেয়ার থাকে আমার 11 জনের একটা ক্রিকেট টিম বনাবো লাগে ফ্রম 17 প্লেয়ার্স আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় যেনেকে এশিয়া কাপ হ'ব কেদিনৰ পিছত এটা স্কোয়াড যায় 15 জনৰ স্কোয়াড হ'ব 15 জনৰ স্কোয়াডৰ ভিতৰত 11 জনে খেলাৰ অপৰচুনিটি পাবো আৰু সো টোটাল স্কোয়াডত কেটা প্লেয়ার আছে 17টা প্লেয়ার আছে 17টা প্লেয়ার আছে টোটাল ইয়ার পরে আমার 11 জন একটা टीम बनाबो लगे इन व्हिच 5 प्लेयर्स कैन बोल ये जो 17 जन আছে যে ऑब्वियसली एक टीम में बैटर बैट्समैन रहेगा ऑलराउंडर रहेगा विकेट कीपर रहेगा बॉलर रहेगा इसमें से आपको बोल दिया है कि 5 आपका बॉलर है এই 17 জন যে একটা স্কোয়াড সিলেক্ট করা হয়েছে এই 17 জনের ভিতর 5 জন বলার আছে 5 জন বলার if each cricket team of 11 is 11 জনৰ যেটো টিম বনোৱা হ'ব মানে ফাইনালি যি টিমে বাৰু ম্যাচ খেলাৰ কাৰণে যাব আৰু যি টিমে ম্যাচ খেলিব এই 11 জনৰ টিমৰ মাজত ইনক্লুড এক্স্যাক্টলি 4 বলাৰ্স এই 11 জনৰ টিমত এক্স্যাক্টলি 4 জন বলাৰ হোৱাটো কম্পালসৰি এক্স্যাক্টলি 4 জন এজন বেছিও নহয় এজন কমও নহয় ক্লিয়ার তো इसको थोड़ा देखिए आपको एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए 4 बॉलर लेके आपको 11 जन का टीम उतारना है फील्ड पे 4 बॉलर आप लेंगे बहुत बढ़िया आप जो स्क्वाड लेके गए एशिया कप खेलने उस स्क्वाड में आपका बॉलर कितना है 5 बॉलर है ये 5 बॉलर में से 4 बॉलर तो आपको लेना ही लेना है 5 बॉलर में से 4 बॉलर 5C4 क्लियर একটা টিমত কেইজন প্লেয়ার থাকে 11 জন 4 জনের হিসাব অলরেডি হয়ে গল
বাকি থাকিল কেইজন 7 জন 7 এই 7 প্লেয়ার সিলেক্ট করার কারণে বাকি অপশন আর কেটা আছে 17 পৰা -5 কৰিলে 13 হয় কেতিয়া পৰা 5 জন বলাৰ পৰা 4 জন বলাৰ সিলেক্ট হৈ গল বাকি আৰু বলাৰ আমি সোমাব নোৱাৰো সো 5 জনৰ হিসাব অলৰেডি হৈ গল স্কোয়াড লৈ গৈছো 17 জনৰ 5 জনৰ হিসাব হৈ গল থাকিল কেইজন 12 জন এই 12 জনৰ পৰা আমি কেইজন লম 4 জন অলৰেডি হৈ গৈছে লাগে আৰু 7 জন মানে 12 सी इधर 4 इधर 7 हो गया 11 जन अभी ये भी चाहिए तब ना आपका टीम बनेगा एंड माने इनटू क्लियर कैलकुलेशन करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 इसका आप लोग काटाकाटी करके बाद में आपका आंसर मिलेगा कितना बोलिए तो 3960 3960 is the answer क्लियर है इजी है मैं बार बार बोल रहा हूं एंड और ये थोड़ा संभल के हमेशा इनटू होगा मल्टीप्लाई होगा ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है प्लस भी होगा आगे चल के देखेंगे आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स एटा बैगत 5টা ब्लैक बॉल আছে আৰু 6টা রেড বল আছে এটা ব্যাগ আছে বাৰু ব্যাগৰ ভিতৰত 5টা ব্ল্যাক কালাৰৰ বল কলা কালাৰৰ বল 5টা আছে ৰঙা কালাৰৰ আছে 6টা আছে ডিটারমাইন দ্য নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ 2 ব্ল্যাক বলস দুটা ব্ল্যাক বল আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে আৰু 3টা রেড বল कैन बी सिलेक्टेड एंड आपको 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट करना है कितने तरीके से करेंगे बहुत आसान 5 में से 2 लेना है 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल लेना है 5C2 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल लेना है 6C3 ये भी लेना है एंड ये भी लेना है माने इनटू क्लियर अभी बाकी तो कैलकुलेशन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल 3 गोल फैक्टोरियल 3 गोल एटू काटा हल 2 এই 3 2 যা 6 এই 3 2 যা 6 গোল এই 5 into 2 কিমান হল 10 আৰু ইয়াতে 5 4 যা কিমান হল 20 সো आंसर কিমান হ'ব 200 is the answer क्लियर ठीक है क्लियर आगे बढ़े In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? এজন স্টুডেন্টে গ্রাজুয়েশন কৰিব গৈছে বা মাস্টার্স কিবা কৰিব গৈছে আৰু তেখেতক 9টা কোর্স 9 কোর্সৰ অপশন দিয়া হৈছে যে আপুনি 9টা কোর্সৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে কেইটা কোর্স 5টা কোর্স স্টুডেন্টক টোটাল 9টা কোর্সৰ অপশন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটা কোর্স সিলেক্ট কৰিব লাগে 5টা কোর্স সিলেক্ট কৰিব লাগে 5टा कोर्स लोगों ही लगे रहने का नहीं इतना नहीं होगा 2 कोर्स लेंगे नहीं 5 लेना ही पड़ेगा अभी इसमें से ये भी बात है
and to specific courses are compulsory যেনেকে আমাৰ এইচএছ ৰ সময় হয় আৰু এইচএছ ত কোনেবা বায়োলজি ফিজিক্স ম্যাথছ কোনেবা বায়োলজি নলৱাকে কোনেবা সবে ই ল'ব পাৰে কম্পিউটাৰ সায়েন্স ল'ব পাৰে কোনেবা ফিজিক্স নলৱাকে কম্পিউটাৰ সায়েন্স ল'লে অপশন আছে बट इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और ऑप्शन नहीं माने इंग्लिश ऑल्टी आपको लेना ही लेना है ऑल्टी की जगह आप एमआई ले सकते अलग बात है लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही नहीं लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है सिमिलरली यहाँ पे दुटा कोर्स स्पेसिफिकली दुटा कोर्स कंपलसरी हो तो लेना ही लेना है बाकी आप देख लीजिए सो इधर सब दुटा कोर्स जेहेतु कंपलसरी माने सपोज आमार 5टा कोर्स तो এনেকে ই আছে আৰু পজিশন বনাই দিলো এই 5টা কোর্স কি লম ইয়াতে লিখিম আৰু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস বায়ো এনেকে লিখা হ'ব আৰু সো ইয়াতে অলরেডি দুটা ফিক্সড এই দুটা আপনার অপশন দিয়াই হোৱা নাই এই দুটা ফিক্সড বাকি আপনার কেইটা আৰু সিলেক্ট কৰা বাকি থাকিল তিনিটা এতিয়া 9টাৰ পৰা দুটা অলরেডি ফিক্সড 9টাৰ পৰা যিকোনো দুটা ফিক্সড বাকি আৰু থাকিল কেইটা 7টা এই 7টাৰ পৰা কেইটা সিলেক্ট কৰিম তিনিটা 7C3 टोटल 9 कोर्स है उसमें से 2 कोर्स आपका फिक्स्ड है वो लेना ही लेना है तो उसको हटा दीजिए तो 9 में से 2 हट गया 7 रह गया आप तो ऑलरेडी 2 ले चुके जबरदस्ती आपको दिया गया आपको लेना है 5 ऑलरेडी 2 आप ले चुके लेना कितना 3 तो 7 में से 3 लेंगे 7C3 आंसर क्लियर हाँ आंसर है answer is 35 answer is 35 এতিয়া এটা বস্তু মই নতুনকৈ কৰা হৈছে একচুয়ালি আপোনাৰ পারমুটেশন আপুনি চাব নাম্বার অফ কোশ্চেন বেছি আছিল কম্বিনেশন অফ কোশ্চেন কম এটা লাস্ট কোশ্চেন আছিল কম্বিনেশনৰ এতিয়া আপোনালোকে পারমুটেশন কম্বিনেশন যিসকলে দুটা ক্লাস কৰিছে তেখেতসকলৰ নলেज वाइज कंप्लीट হৈ গল ঠিক আছে गवर्नमेंट जॉब में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है अभी थोड़ा रिवीजन अभी रिवीजन क्योंकि हम लोग जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग अलग अलग से किए इसलिए अब अलग अलग से परमुटेशन होगा कॉम्बिनेशन होगा आप ऑलरेडी दिमाग में आपका चल रहा है लेकिन क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको ऐसा बोल के नहीं देगा कि परमुटेशन कीजिए कॉम्बिनेशन कीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि परमुटेशन होगा कॉम्बिनेशन होगा तो अभी जब रिवीजन करेंगे इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा परमुटेशन भी रहेगा कॉम्बिनेशन भी रहेगा तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिएगा परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा उसका कॉम्बिनेशन में कैसा होगा परमुटेशन में कैसा होगा क्लियर है सो मूविंग फॉरवर्ड ये आपका हो गया रिवीजन शुरू होगा अभी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 बताइए इसका आंसर हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants दुटा भावेल और तीनटा सपोज डॉटर डॉटर में ए आपका वावेल है यू आपका वावेल है ई आपका वावेल है ये तीनों है वावेल बाकी डी कॉन्सोनेंट हो गया जी कॉन्सोनेंट एच कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट आर कॉन्सोनेंट वावेल आपके पास कितना है 3 कॉन्सोनेंट कितना है 5 कॉन्सोनेंट 5 अभी आपको 2 वावेल लेना है और 3 कॉन्सोनेंट लेना है तो आप 3 वावेल में से 2 वावेल आपको लेना है आउट ऑफ 3 वावेल्स 1 2 3 में से आपको 2 वावेल सिलेक्ट करना है कितने तरीके से कर पाएंगे नंबर ऑफ वावेल्स 3 आपको लेना है 2 वावेल कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर पाएंगे 3C2 क्लियर कॉन्सोनेंट केटा আছে কনসোনেন্ট 5টা আছে টোটাল কনসোনেন্টের অপশন আছে 5টা আমার লোগো দিছে কেটা 3 সো
পাঁচটা কনসোনেন্টের উপর তিনটা লোগো লাগে, তো 5C3। क्लियर? कैलकुलेशन कीजिए, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 गोल, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 2, 3 इंटू 10, 30। क्लियर? क्लियर? लास्ट में हीरो का सीना ना, क्या ये सही है या इसके बाद भी और कुछ करना है? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? और कुछ करना चाहिए? অঙ্কিতা লাস্টে ছিল না কম্পিটিশনে, এটা শেষ না আরো কিছু করা বাকি আছে আমাদের? हाँ কমন नहीं लेते मतलब समझे नहीं? नहीं एक मिनट, क्वेश्चन আমার কোয়া হইছে ডটার, কমপ্লিট ডটার সব এটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা, টোটাল 8টা অ্যালফাবেট আছে। 8টা অ্যালফাবেটের ভিতর আমি চালু যে তিনটা আমার ভাওয়েল, 5টা কনসোনেন্ট হয়ে গেল 8টা ভাওয়েলের, তিনটা পড়া দুটা সিলেক্ট করব লাগে 3C2, 5টা কনসোনেন্টের পড়া তিনটা কনসোনেন্ট 5C3, आंसर 30 পালু, ইয়াতে কোনো ভুলে হওয়া নাই, পুরা ঠিক আছে। বাট माय क्वेश्चन इज क्या यहाँ पे बात खत्म है कि और भी कुछ करना है? करना है? हाँ क्या करना होगा? देखिए आप चीज को देखिए, मुझे पता नहीं आप लोग कितना देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 30 जो आंसर बोले 30 माने की 30 কি ওলালে 32 কি 32 হল যে আমি এই পাঁচটা তিনটা ভাওয়েলৰ পৰা ভাওয়েল ললো, দুটা কনসোনেন্ট পাঁচটাৰ পৰা তিনটা ললো, তো বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশন লোৱা হ'ব। সো বহুত কেইটা বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশন হোৱাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম 30টা কম্বিনেশন হ'ব, ইয়াৰ বাহিৰত নহয়। এতিয়া মোৰ কথা হল যে আপুনি টোটাল 5টা আপোনাৰ পজিশন আছে, जिसको थोड़ा समझेंगे गौर से। ये 5 आपका पोजीशन है, ये 5 पोजीशन में ये आपका टोटल 8 अल्फाबेट है, 8 अल्फाबेट, 8 अल्फाबेट्स आर देयर। ये 8 अल्फाबेट में से आपको ये 5 जगह भरना है, ये 5 जगह भरना होगा ना, 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट, 2 + 3 5 जगह भरना है। तो ये 5 जगह में से आपका 2 वावेल आएगा, 3 कॉन्सोनेंट आएगा, खेला खत्म। समझे कि नहीं? अभी मुझे बताइए, ये 5 जगह आपको भरना है, ये 8 जगह में से, तो इसमें से वावेल अलग से कॉन्सोनेंट अलग से, कितने तरीके से आप ले पाएंगे? 30 तरीके से। लेकिन ये जो आप जगह को आप बैठाएंगे, मान लेते इधर आप कुछ एक वावेल आया, इधर कुछ वावेल आया, इधर कॉन्सोनेंट, इधर कॉन्सोनेंट, आप में से हीरो बोल रहे कि सर मैं काम करूंगा, मैं इधर ना, मान लेते मैं इधर सर आपको ए को बैठाऊंगा, मैं इधर ना आपका यू को बैठाऊंगा, ये दोनों वावेल हो गया, दोनों वावेल लेना था, उसको कॉन्सोनेंट लेना, मैं इधर डी लिखूंगा, इधर टी लिखूंगा, इधर आर लिखूंगा। क्या ये गलत है? एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं सर मैं काम करूंगा, मैं ए को इधर नहीं लिख के मैं ए को इधर लिखूंगा, आर को इधर नहीं लिख के आर को इधर लिखूंगा, डी को इधर नहीं लिख के डी को इधर लिखूंगा, यू को इधर लिखूंगा, टी को इधर लिखूंगा, ये भी सही है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये 5 जगह में आप वावेल और कॉन्सोनेंट 5 जगह भर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 जगह अपने आप में तो जगह तो चेंज कर सकता है। ये 5 जो अल्फाबेट है अपने आप में जगह चेंज कर सकता है। तो किसी भी 5 चीज को आप 5 को एक साथ लेके कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? कल के क्लास में देखे थे 5 आइटम्स आर देयर, আপোনালোকে 5টা আইটেমক কিমান ভাবে আপুনি অ্যারেঞ্জ কৰিব পাৰে। এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, সিলেকশন নহয়, সিলেকশনটো অলৰেডি হৈ গল, এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট। মই সাপোজ মোৰ হাতত 9টা মিঠাই আছিল, মই 5টা মিঠাই লব দিলে, 5টা মিঠাই মই সিলেক্ট কৰিলো, এটা 5টা মিঠাই ৰসগোল্লা আছে, সন্দেশ আছে, কি আছে, মই আগত रसगुल्ला নখাই মই লাড্ডু খাব পাৰো, কোনোবা লাড্ডু আগত খালে পিছত रसगुल्ला খালে, तो अरेंजमेंट तो अलग अलग हो सकता है। तो 5 आपका जगह है, 5 तरीके से आप 5 को एक साथ लेके कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल। 4 आइटम 4 फैक्टोरियल, 3 आइटम 3 फैक्टोरियल, 5 आइटम 5 फैक्टोरियल। किए थे कि नहीं किए थे? तो ये 30 × 5 फैक्टोरियल। अभी जो आंसर होगा ये करेक्ट है, बात समझे? परमुटेशन जो किए हैं वो लोग नहीं समझेंगे, बाकी लोग को
अभी समझाना थोड़ा दिक्कत है। 5 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था? 120 आंसर आपका होगा 3600 इज द आंसर। 5 जगह भरने के बाद ये 5 जगह को अपने आप में वो जगह चेंज कर सकता है। कितने तरीके से जगह चेंज करेगा? 5 फैक्टोरियल। तो 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आइए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितना किसको समझ में आया। যিসকলে পারমুটেশন কৰিছিল লাস্ট ক্লাছত তেখেতসকলে এটো অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিব। পারমুটেশন নকৰা ষ্টুডেণ্টে এটো অ্যাটেম্প কৰা হলো অলপ নহয়, এটো সম্ভৱ নহয় চাগে। পারমুটেশনৰ কনসেপ্ট ইয়াতে কম্বিনেশন হ'ব পাৰে বাৰু, আগৰ পৰা কিয় কওঁ আৰু কম্বিনেশন হ'ব পাৰে। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। কি দিয়া হৈছে? How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation? Word এটা দিয়া হৈছে equation। লাস্ট ক্লাছত equation দি আমি এটা क्वेश्चन কৰিছিলো। equation word দি আমাক word বনাব দিছে so that the vowels and consonant occur together। vowel और consonant সদায় একেলগে আহাটো मैंडेटरी। अभी चीज को थोड़ा देखेंगे ना। इक्वेशन का क्वेश्चन किए थे लेकिन ये क्वेश्चन नहीं किए थे। वर्ड इक्वेशन था, क्वेश्चन अलग था। इक्वेशन यार पूरा भावेल के अपनी साइड करो। भावेल के क्या से आते? ई ए आई ओ यू, ई ए यू आई ओ, 5টা भावेल आही गले आते। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के क्या से? क्यू टी एन, क्यू टी एन। ভাৱেল কেটা সেপাৰেট কৰা হল, কনসোনেন্ট কেটা সেপাৰেট কৰা হল। এটা ভালকে চাব, লিখা লিখি পিছত কৰা চাব হলো। কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ এই ইকুৱেশন ওয়ার্ডৰ ভাৱেল আৰু কনসোনেন্ট সদায় একেলগে আহিব। মানে ভাৱেল सब भावेल एक साथ आएगा, सब कॉन्सोनेंट एक साथ आएगा। बात समझे? अभी आप एक चीज बताइए, मैं इसको अलग अलग कर लिया। भावेल को एक जगह कर लिया, आठा वाठा लगा से उसको एक कर दिया, कॉन्सोनेंट को एक जगह करके आठा लगा दिया। अभी ये जगह चेंज, ये अपने एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएगा। अभी आप बोलिए, ये जब एक बॉक्स में रहेगा, ये सब एक बॉक्स के अंदर है और ये एक दूसरा बॉक्स के अंदर है, तो इस बॉक्स में आपका कितना एलिमेंट है, कितना आइटम है? 5 आइटम है। 5 आइटम अपना जगह कितने तरीके से चेंज कर पाएगा? वेरी गुड, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली इधर इस बॉक्स में 3 आइटम है, अपना जगह कितने तरीके से चेंज करेगा? 3 फैक्टोरियल। हो गया? आंसर करेक्ट है? कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा ना, कुछ बाकी है? 5 है, अपने जगह चेंज करेगा कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। बहुत सही। 3 आइटम है, कितने तरीके से चेंज करेगा? 3 फैक्टोरियल। सही है। इनटू भी होगा बिकॉज दोनों आपका कंपलसरी है। अभी और कुछ करना बाकी है? किस हो गया खत्म? हाँ डिवाइड, डिवाइड तो सेम है ही नहीं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज तो इधर भी आ सकता है, ये पूरा चीज तो इधर भी जा सकता है। मैं पहले इसको इधर रखा, बाद में रखा, क्यों? क्यूटीएन तो आगे आ सकती है, तो बाद में जा सकता है। तो इसको एक पूरा आइटम मानिए, इसको पूरा एक आइटम मानिए। ये 2 आइटम है, 2 आइटम अपने आपस में जगह कितने तरीके चेंज करेगा? 2 तरीके से, माने 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसका कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। तो 5 फैक्टोरियल का कितना था? 120। 3 फैक्टोरियल का 6, 2 फैक्टोरियल का 2, 6 2 जा 12, 12 12 144, साथ में एक 0 आपको पूजा का गिफ्ट दिया जाएगा। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े? इधर क्लियर? वेरी गुड। सुष्मिता क्लियर हो रहा है ना? ठीक। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा अजीब टाइप का चीज है, तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस तो है नहीं, तो आपको घर में करेंगे हो जाएगा। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है नहीं ना, थोड़ा ये नॉर्मली तो नहीं किया जाता किसी क्लास में, तो आपको घर में एक बार रिवाइज करेंगे आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसी खुशी में इसका आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 यानी कि सेपरेट क्वेश्चन सेम, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल 9 বয়েজ 9 জন লৰা আছে আৰু 4 জন আমাৰ ছোৱালী আছে। 9 বয়েজ এণ্ড 4 গাৰ্লছ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা কমিটি বনাব লাগে, दुर्गा पूजा कमिटी बनाबो लगे। 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। कमिटी में टोटल कितना आदमी रहेगा? 7। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? তিনিটা গার্ল এক্স্যাক্টলি তিনিটা গার্লে হ'ব লাগে, মানে এক্স্যাক্টলি কথাটো মানে কি তিনিটা গাৰ্লছৰ পৰা এজন বেছি হ'ব নোৱাৰে, এজন কম হ'ব নোৱাৰে, এক্স্যাক্টলি তিনিজনে লাগে। কথা ক্লিয়াৰ? সো টোটাল আমাৰ কমিটিত কেইজন মেম্বাৰ? 7 জন মেম্বাৰ লাগে। গাৰ্লছ কেইজন লাগে? আমাৰ 3 জন লাগে। গাৰ্লছৰ অপচন কেইটা আছে? 4টা আছে। 4টা গাৰ্লছৰ পৰা 3টা গাৰ্লছ, 4C3। क्लियर? टोटल कितना मेंबर चाहिए? 7 मेंबर चाहिए। 3 मेंबर का हिसाब हो चुका है, बाकी और कितना मेंबर चाहिए? 4 मेंबर चाहिए। आपको 4 मेंबर चाहिए। कहां से चाहिए? बॉयज में से लेंगे आप, तो 4 आपको सिलेक्ट करना, कहां से? बॉयज में से। तो 9C4। क्लियर? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। तो 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 काटी गल। ইয়াতে 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5। क्लियर? फैक्टोरियल 5 गोल, 4 2 जा 8 गोल, 9 3 जा 27। इसका अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिलना चाहिए कितना? 504 इज द आंसर। 504 शुड बी द आंसर। 504। क्लियर? क्लियर? इसमें इनटू तो समझ में आया ना क्यों इनटू हुआ? बिकॉज एंड मुझे ये 3 लड़की भी चाहिए होगा कमिटी में और 4 लड़का भी चाहिए होगा, ये दोनों चाहिए तब जाके 7 बनेगा, एंड इसलिए इनटू हुआ। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। आगे बढ़े? अभी इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आगे बढ़े? यूट्यूब से? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यूट्यूब नहीं, अभी स्क्रीनशॉट मिलेगा तो आप लोग को। इतना दूर कहाँ जा रहे हैं आप? जगह नहीं है, होगा। आइए इस क्वेश्चन का बताइए आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग। कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होने वाला है। फिर से वही क्वेश्चन, कमिटी 7 आदमी का बनना है, टोटल 7 आदमी का बनना है। आपके पास ऑप्शन है 9 बॉयज 4 गर्ल्स, 7 मेंबर का कमिटी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट इसका मतलब क्या है? इसका क्या, इसमें क्या सिचुएशन हो गया तब? ये एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब 3 तो रहेगा ही, उसके बाद और कुछ है क्या? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपका 4, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4, इसमें से 3 गर्ल्स तो रहना ही रहना है, 4 गर्ल्स रहेगा, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इसको समझे कि नहीं? अभी आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे। कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, और ठीक है, कैलकुलेशन हम बाद में ये कर लेंगे। मैं सिर्फ मेन लाइन बना रहा हूं जो कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए, टोटल एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल आपको सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स लेना है 4C3। एम आई क्लियर? 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेना है 4C3। अगर आप 3 गर्ल्स लेंगे, बॉयज आपको कितना लेना होगा? टोटल 7 है कमिटी में मेंबर, 3 लड़की हो गया, बाकी लड़का कितना होगा? 4। लड़का आपको 4 लेना होगा, कितने में से? 9 बॉयज, तो 9C4 इंटू की प्लस
क्यों नहीं इंटू होगा? बोलिए, आपके पास फाइन लगेगा, बोलिए क्यों इंटू नहीं होगा? क्या गलती हुआ इंटू होने से? हाँ, कॉमिटी में 7 आदमी होना ही होना है, कॉमिटी नहीं बनेगा, दुर्गा पूजा नहीं होगा। इधर से 3 उधर से 4 मिलके ना कॉमिटी बनेगा। आप कॉमिटी में आप मेंबर नहीं रहेंगे। टोटल 7 मेंबर का कॉमिटी बनना है, उसमें से एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट मैं एटलीस्ट मिनिमम 3 गर्ल लिया, मुझे और 4 लड़का लेना है, तब जाके 4 और 3 7 हुआ। ठीक है, ये तो आपका लास्ट में भी किए थे, लास्ट क्वेश्चन में किए थे। अभी और क्या करेंगे बोलिए, अभी और क्या करेंगे? यहां पे तो कहानी आधा खत्म हुआ और आधा बाकी है। वेरी गुड, 4C4। ये क्या हुआ? 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स ले लिए। अभी बॉयज कितना लेंगे? वेरी गुड, कितना बॉयज है? 9C3 इंटू की प्लस इंटू, वेरी गुड, बिकॉज 4 गर्ल्स 3 बॉयज, 4 + 3 7। क्या ये सही है? ये जगह, सिर्फ ये जगह, क्या ये सही है? ये सुन लो, अरे आप लोग ही तो किए अभी ये जगह सही है कि नहीं? ये जगह करेक्ट है, तो 7 मेंबर हुआ, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी होने से होगा, ये भी होने से होगा, और माने प्लस। समझे? ये आपका एक कॉम्बिनेशन है जो सही है, ये भी कॉम्बिनेशन सही है, ये भी है, ये भी है, दोनों में से कोई भी एक होगा, कॉमिटी 7 मेंबर का बन रहा है। दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट, और माने प्लस। क्लियर? अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसका अलग से कैलकुलेशन निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा लिखेंगे। वैल्यू आपका आएगा आंसर, कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर आएगा 588। क्लियर हुआ? ये आगे बढ़े। आइए इसका बताइए। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हुआ, एटलीस्ट 3 गर्ल्स हुआ, सेम क्वेश्चन, कंडीशन अलग। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मैक्सिमम आप 3 गर्ल को ले सकते हैं, मैक्सिमम। इससे ज्यादा लेंगे झगड़ा ज्यादा होगा, काम कम होगा। समझे? तो क्या करेंगे बोलिए? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, देखिए मैं 3 गर्ल से शुरू करता हूं, 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल ले सकते हैं। टोटल कितना गर्ल्स है? 4 गर्ल्स 9 बॉयज, कॉमिटी बनाना है 7 जन का, तो 3 गर्ल्स में लेता हूं, 4 गर्ल्स में से 4C3, और बॉयज कितना लेना होगा? अभी 4 लेंगे, कितना ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है, तो 9C4 इंटू में क्या क्यों दिया? बिकॉज ये दोनों जरूरी है, ये कॉम्बिनेशन होने से 7 बन रहा है, इंटू। लेकिन ये गर्ल्स एट मोस्ट 3 बोला गया है, তিনিজন ছোৱালী হোৱাটো ম্যাক্সিমাম, ইয়াতছে কম হলে কোনো অসুবিধা নাই। তো তিনিজনের জায়গা দুজন ছোৱালী হ'ব পাৰে, মানে 4C2। যদি দুজন ছোৱালী হয়, লড়া কেজন হ'ব? 5, माने आपका 9 लड़का है, उसमें से 5 लेंगे, 9C5। 2 लड़की भी नहीं होने से होगा, 1 लड़की होने से भी होगा। एटमोस्ट बोला है ना, मैक्सिमम 3, कम हो सकता है, तो 4C1 इंटू 9C, वेरी गुड। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, लड़की नहीं होने से भी होगा रे बाबा, 4C0 चाहिए ही नहीं, इंटू 9C7, ये भी 7 हो रहा है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दिस और दिस और दिस और दिस, माने सब और के जगह प्लस। क्लियर? समझे? आंसर कैलकुलेशन करार पिছত आंसर आहिब 1632, 1632। ठीक है?
क्लियर? आगे बढ़े। इसका बताइए, डिक्शनरी देखना सबको आता है ना? वेरी गुड। तो ये तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन दिया हुआ तो वर्ड दिया हुआ एग्जामिनेशन, वर्ड दिया हुआ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और क्वेश्चन दिया हुआ जे ई वर्ड। देखिए एग्जामिनेशन जो वर्ड है कहां किससे शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है। इसमें आप देखेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा घुमा फिरा के लिखूंगा, एग्जामिनेशन वर्ड में जो अल्फाबेट है उसको अगर मैं थोड़ा घुमा फिरा के अरेंज करूंगा तो कभी एक्स आगे आएगा, कभी ए आगे आएगा, कभी एम आगे आएगा, ऐसा बहुत सारा वर्ड बन सकता है विदाउट और विथ मीनिंग। मीनिंग हो ना हो मतलब नहीं है। सवाल यह है कि ई से वर्ड शुरू होने से पहले क्वेश्चन क्या दिया है? एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। ई से वर्ड शुरू होने से पहले इसी अल्फाबेट को यूज करके डिक्शनरी में इस ई वर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड से पहले और कितना वर्ड बनेगा। डिक्शनरी में क्या होता है? हम लोग पहले ए से शुरू करते हैं, ए के बाद ए उसका ए बी बी बी, ए सी, ए डी, ए ई, ऐसे ए जेड तक जाएगा, ए खत्म, उसका बी बी ए बी 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 सी, ऐसे ना डिक्शनरी देखते हैं। तो ई से वर्ड शुरू होने से पहले उस डिक्शनरी में ये सब अल्फाबेट देके और कितना वर्ड पहले आगे है, कैसे करेंगे? देखिए एग्जामिनेशन ई एक्स ए एम आई एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आपका एग्जामिनेशन में 11 ठो अल्फाबेट का जगह है, 11 अल्फाबेट का जगह है। मतलब आप जो भी ये सब अल्फाबेट को यूज करके जो भी आप वर्ड बनाएंगे उसमें 11 अल्फाबेट होना कंपलसरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 যেহেতু ইয়াতে 11টা অ্যালফাবেট আছে, আমি জি ওয়ার্ডে বনাও স্টার্টিংত জি অ্যালফাবেটে থাকক, 11টা অ্যালফাবেট হওয়াটো কম্পালসরি। কথা ক্লিয়ার? अभी ई ई আগত बाकी स्टार्ट हुआ अल्फाबेट की আছে ए, बिकॉज ए के बाद देखिए ई, उसके बाद देखिए कोई भी अल्फाबेट बोलिए, कोई भी एक्स एम आई टी, ये सब ई के बाद है, टेंशन ही नहीं है। तो ई से पहले मेरा सिर्फ एक ही वर्ड अल्फाबेट से वर्ड बनेगा, वो ए से। मतलब घूम फिर के बात तो यही हो रहा है ना कि सर देखिए मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, ये जगह पे ए आना कंपलसरी है, इधर मैं घुमा फिराता रहूंगा, कभी इधर ई आएगा, कभी एक्स आएगा, कभी कुछ आएगा कुछ आएगा, वो तो घूमता फिरता रहेगा, लेकिन ये जगह पे ए आना कंपलसरी है। बात सही है? बहुत बढ़िया। अभी आप मुझे बताइए, ए अगर आपका फिक्स्ड है, ए को आप चेंज नहीं करेंगे, ए छोड़कर कितना जगह आपके पास है भरने के लिए? 10 places are there, 10 places can be arranged by 10 alphabets in how many ways? total position কেটা আছে 10, আমার হাতত অপশন কেটা আছে, বিকজ এ তো অলরেডি ইউজ হৈ গল, এ তো আর ইউজ নহয়। এক্সামিনেশনৰ এটা এ, অনলি ওয়ান এ, এটা এ মই সাপোজ কৰিলো এই এটো ইয়াতে ফিক্সড হৈ গল, এই এ বাদ দিয়াৰ পিছত বাকি আৰু কেটা অ্যালফাবেট আছে? 10। জায়গা কেটা আছে? 10। সো 10 পজিশনস আর देयर, 2টা পজিশন আছে, ফিল আপ করার কোনো অপশন কেটা আছে? 10। সো 10 পজিশনস ক্যান বি ফিল্ড বাই 10 অপশনস ইন হাউ মেনি ওয়েজ? वेरी गुड, फैक्टोरियल 10। बात क्लियर? अभी एक चीज गौर से देखिए, याद कीजिए, मिसिसिपी क्वेश्चन किए थे, मिसिसिपी में एस आ रहा था 4 बार, आई आ रहा था 4 बार, नीचे में डिवाइड किए थे जो बार बार आ रहा है। अभी इसमें डिवाइड करेंगे जो बार बार आ रहा है, क्या बार बार आ रहा है? ए, और कुछ? आई कितने बार आ रहा है? 2 फैक्टोरियल आ रहा है। क्या मैं इधर ए के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा? यस और नो? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप ये वाला जगह आपका फिक्स्ड है ए, ये जगह को आपको घुमाना फिराना है बार बार, ये जगह में यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ए है, एक ए तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया, तो उसमें तो एक ही ए है, 2 ए और होता 3 ए होता टोटल, तब मैं 2 फैक्टर से डिवाइड करता, बिकॉज ये जगह पे तो एक ही ए आपके पास है यूज करने के लिए, तो मैं क्यों डिवाइड करूंगा?
आई लेकिन 2 है, तो आंसर होगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसको काटेंगे, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। एक सेकंड रुकिए, और कुछ अल्फाबेट और एक है, तो एन है ना, एन भी 2 बार आया है, तो बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आपका आंसर आएगा 907200 907200। क्लियर? आगे बढ़े तो हम दो क्लियर है ना? बसंत क्लियर है? अंकिता ठीक है? तो आइए, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जी अलग से बैठ गया जी इसलिए। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10। 6 ডিজিট নাম্বার, আমার 6 ডিজিট নম্বর কেটা বনাবো লাগে, এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছয়, 6 ডিজিট নাম্বারস আমাক বনাবো লাগে। এল আমার হাতে অপশন কি কি দিয়া আছে, 0 1 3 5 7 9 অপশন দিয়া আছে 0 1 3 5 7 9। এই কেটা ডিজিট ইউজ করে আমাক কি বনাবো লাগে, 6 ডিজিট নম্বর বনাবো লাগে। कंडीशन दिया है द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10, 10 यदि डिविजिबल जाबो लगे। सो पहला काम क्या करेंगे, 10 से डिविजिबल कब जाता है एक नंबर, वेरी गुड, लास्ट में 0 होना कंपलसरी है। 10 से अगर आपको डिवाइड जाना है, ये जगह 0 होना ही होना है, मतलब ये 0 आपका फिक्स्ड हो गया, ये 0 आपका इधर फिक्स्ड हो गया, इसका और कोई काम नहीं है, 0 आपका फिक्स्ड है। आगे में कुछ भी रहे, लास्ट में 0 तो 10 से जाएगा ही जाएगा। अभी आपके पास कितना पोजीशन है भरने के लिए, 5, आपके पास ऑप्शन कितना है 5, तो 5 ऑप्शन से 5 जगह भरना, इन हाउ मेनी वेज, खत्म। क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया? और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देंगे। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonant। আমার টোটাল 26টা অ্যালফাবেট থাকে, তার মধ্যে 5টা ভাওয়েল হয়, বাকি 21টা কনসোনেন্ট, আমি সবে জানো। আর হাউ মেনি वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वावेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। आपको 2 वावेल और 2 कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाना है, 2 वावेल रहेगा 2 कॉन्सोनेंट रहेगा, कितना वर्ड बनेगा, इजी है। टोटल वावेल कितना है आपका, वावेल है आपका 5 और कॉन्सोनेंट कितना है 21। आपको जो वर्ड बनाना है, वर्ड में आपका 2 वावेल होगा, 5 में से 2 वावेल 5C2, 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट होना पड़ेगा, माने 21C2। 4 वर्ड हो रहा है, 2 कॉन्सोनेंट 2 वावेल, ये भी रहना पड़ेगा, ये भी रहना पड़ेगा, तब 4 अल्फाबेट होगा। एंड की और, एंड माने इनटू, और कुछ करना बाकी है? आपको 5 भावेल में से 2 भावेल लेना, आप ले लिए। 21 कॉन्सोनेंट में से 2 लेना होगा, कितने तरीके से लेंगे, ले लिए।
आपका 4 जगह भर्ती हो गया, और कुछ करना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन किया है थोड़ी देर, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या होगा? वेरी गुड, हीरो इतना दिन बाद 10 साल बाद एक अच्छा आंसर दिया है, 4 फैक्टोरियल। बिकॉज आपका टोटल 4 जगह है, ये 4 जगह आपको भरना है। ये 4 जगह में आप कोई भी 2 वावेल लिए, मान लीजिए इधर एक वावेल लिए, इधर एक वावेल लिए, इधर एक कॉन्सोनेंट लिए, इधर एक कॉन्सोनेंट लिए, इसका नाम मैं 1 देता हूं, इसका नाम मैं 2 देता हूं, इसका 1 देता हूं, इसका 2 देता हूं, हो गया 2 वावेल 2 कॉन्सोनेंट। अब ये चारों चीज अपने आपस में तो जगह चेंज कर पाएगा, है ना? तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आंसर आपका होगा 50400। क्लियर? ठीक है। एक काम करेंगे, बाकी का क्वेश्चन में एक एक करके आपको ये आगे ले रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर करके बताइएगा, ठीक है। बाकी कुछ बिकॉज ऑलरेडी रिवीजन बहुत हो गया है, तो अभी आप लोग होपफुली कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी बोल देता हूं यार, मतलब 2-3টা क्वेश्चन আছে অলপ ভাল লেভেলত, ঠিক আছে। এডিআরই কারণে না লাগে বাৰু, বাট অবভিয়াসলি এসএসসি रेलवेज के लिए हरदम चाहिए, ठीक है। মুভিং ফরওয়ার্ড, क्वेश्चन नंबर 23, ইয়াৰ এবাৰ স্ক্রিনশট লব, आंसरটো বাৰু মোক জনাব কি হয়। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा अगर ये कर पाएंगे तो, ठीक है। इसको करेंगे, आंसर मुझे बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे बढ़े। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन। অলরেডি বাৰু এনেকে क्वेश्चन কৰা হৈছিল আমাৰ। 5টা কাৰ্ডৰ কম্বিনেশন, ডেক 52 কাৰ্ডস। আমি কৈছিলো কি এটা এস হ'ব লাগে, ইয়াতে এটা ৰজা দিছে, এক্স্যাক্টলি 1 কিং, सेम बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आंसर बता दीजिएगा। आइए 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा एसासिनेशन, मिसिसिपी, ये सब वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। थैंक यू।